में सबसे ज़्यादा फैन बेस नालायक का नॉर्थ ईस्ट में. If I open my Spotify, first city on the top is Guwahati. Proudly, I am Nalayak because after class 11th, I've never been to school. I've done some open classes and all. What do you read and all? Yes. So मैंने कहा एक तो नाम मेरा नालायक है. Do you think I read something? So it's like I read about myself. On this interview, I will reveal. My partner is from. I used that lockdown time to write songs, and I wrote Zakir and all. I wrote 350 songs that time. पहले तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था टिल क्लास 11th. So I used to play for my school and all. Then I realized in the hostel कि ये हॉबी है मेरा. Okay. म्यूजिक पैशन है. मोस्टली मैं चाहता हूँ इफ यू नो द सॉन्ग डोंट फील शाय. गाओ चीख के चिल्ला के. आर्टिस्ट को बहुत अच्छा. हम स्टेज पे होते हैं ना, हमें एक अंदर से एनर्जी का रश आता है, फिर फील गुड. नहीं, आई एम स्टिल नालायक. पीपल कॉल कि नहीं अब तो आप लायक हो चुके, बट आई एम नालायक ओनली. Hi, I'm Pooja, and it's such an honor to sit with. I'm nalayak. It's okay. And it is such an honor to sit with someone having a cup of coffee, which yes, oh, you're having green tea, and it's like an honor. Like I listen to you every day. Like whenever we're in party, we're chilling inside our home, we're always listening to. Thank you so much. So tell me, why are you here in Arunachal Pradesh? First of all, I love Northeast, Yes. and second thing that I'm here for the show. Yeah. And in Arunachal, this is 5th show that I'm playing with my band, and we are excited. We are playing at like Siang River Festival, and Yes. I went there last night to see Shan sir live, and I'm already excited. I saw the crowd and energy and all everything, so we are super excited for the show tonight. Yes, yes. So tell me, how did Nalayak come together, and Okay. what is the story behind your unique name? Nalayak is my stage name. Yes. Plus, obviously, it's a band name also because Yes. we are playing together. So on the stage, if there are 4 or 5 people, it's a band only. So on a priority, it's my stage name because proudly I am Nalayak because after class 11th, I've never been to school. I've done some open classes and all. Really? But technically, so this is the reason I'm Nalayak because यही सुना बचपन से कि नालायक है, पढ़ता लिखता नहीं है, blah blah blah. So I was like, I will go with this name. So that's how Nalayak. So you changed the meaning of Nalayak actually. Like अच्छा नहीं, आई एम स्टिल नालायक. पीपल कॉल कि नहीं अब तो आप लायक हो चुके, बट आई एम नालायक ओनली. बट आपने वो चेंज कर दिया, जैसे बचपन में बोलते थे कि ये नालायक है, नहीं हाँ, पढ़ेगा. मतलब ऐसे था, सुना था टीचर्स वगैरह से टॉन्ट के ये स्कूल के गेट के बाहर ही गाओगे तुम, क्या करते रहे तो गाना वाना गिटार बजाना एंड ऑल. बट आई फील प्राउड गोइंग टू लॉट ऑफ बिग कॉलेजेस, प्लेइंग गुड म्यूजिक फेस्टिवल्स एंड ऑल विद दिस नेम नालायक, जिनको जो लोगों को लगता है कि कुछ नहीं कर सकते नालायक लोग. बट या इट्स अ गॉड गिफ्ट ऑन लाइक first thing, it's a God gift, but you know how to use it. So Okay, so tell me that you have a unique song lyrics something, right? So what is the so basically technically what I feel, I'm not a singer, तो मेरा major काम है गाना लिखना. I want to deliver good lyrics, not कुछ ऐसे वर्ड्स हों जिसमें कुछ मीनिंग ही ना हो, कुछ मोटिवेशन ना हो, बिकॉज वैसे गाने लिखना बहुत आसान है. मतलब कुछ भी टॉपिक पे ऐसे कुछ भी रैंडम लिख दो, बट आई फोकस ऑन राइटिंग. फिर उसको कंपोज करना, उसको प्रोड्यूस करना है. थर्ड थिंग दैट आई सिंग व्हाट आई हैव रिटन, सिंपल. सो आई एम अ राइटर, कंपोजर, परफॉर्मर. देन थर्ड थिंग इज दैट आई एम अ सिंगर. मतलब आपके लिरिक्स में ये होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन. एग्जैक्टली. सो मुझसे पहले भी एक बार किसी ने पूछा था इंटरव्यू में, व्हाट डू यू रीड एंड ऑल. सो मैंने कहा एक तो नाम मेरा नालायक है, डू यू थिंक आई रीड समथिंग. सो इट्स लाइक आई रीड अबाउट माई सेल्फ. एक्सपीरियंस, हर दिन नया एक्सपीरियंस होता है. कल रात को कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो एक एक्सपीरियंस है. तो प्रैक्टिकल चीज़ें जो हो रही है लाइफ में और उसको हम प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं, देन वी आर हैप्पी, वी आर आउट ऑफ दैट शिट. सो फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज एक्सपीरियंस, आई गेट लिरिक्स. तो बस ऐसे मतलब ऐसे घूम घूम के लोगों से मिल के. अभी जैसे अरुणाचल आए हैं, लोगों से मिलेंगे, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस देखेंगे, म्यूजिशियंस को मिल रहे हैं अच्छे. वी मेट निखिल डिसूजा, शान सर एंड ऑल. सो हर एक चीज को, एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके दिमाग में कुछ ना कुछ एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है, वो बाहर आता है. सो व्हेन डिड यू डिसाइडेड दैट यू विल बी अ प्रोफेशनल सिंगर और समथिंग? पहले तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था टिल क्लास 11th. सो आई यूज्ड टू प्ले फॉर माय स्कूल एंड ऑल. देन आई रियलाइज्ड इन द हॉस्टल कि ये हॉबी है मेरा. Okay. Music passion है. Guitar because I was playing from class 2nd. I used to play in church choir and all. So वहाँ से मैंने सब कुछ. I've never been to music class actually. Yes. तो सब church choir से सीखना, Sunday service पे जाना, वहाँ पे गाना गाना choir के साथ. So पहले से था मेरा plan that I want to be on the stage.
बट 2 थॉट्स थे उस टाइम, तो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द स्कूल कि आई डोंट वांट टू कीप एनी सेकंड ऑप्शन। जैसे कोविड के टाइम में कितने लोगों ने म्यूजिक छोड़ दिया, आर्ट छोड़ दिया, बिकॉज दे वांटेड टू अर्न, तो ज़रूरी भी था, जॉब करने लग पड़े। नाउ दे आर नॉट एबल टू कम बैक टू म्यूजिक सीन अगेन, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सो आई यूज दैट लॉकडाउन टाइम टू राइट सॉन्ग्स एंड आई रोट ज़ाकिर एंड ऑल, आई रोट 350 सॉन्ग्स दैट टाइम, तो लाइक दैट। That's how it began. तो जाकिर is a very famous song. I listen to that song. मैं भी खुद हैरान हूँ जब रिलीज किया था, क्योंकि no one liked it actually। जो मेरे साथ पहले musicians play करते थे, they were like कि ये समझ ही नहीं आ रहा, so much Urdu, no one will be able to relate। Keep it simple। I was like no bro, I love this thing। और जो मेरे स्टूडियो वाला था उसने मुझे मोटिवेट किया कि bro this is a beautiful composition and writing is on the top, release it। रिलीज किया and like सुबह उठा हूँ मैं, सॉन्ग इज फेमस, वायरल, वाओ। पाकिस्तान में चल रहा है, वहाँ कराची एफएम में लोगों के मैसेज आ रहे हैं, आर यू पाकी और like Indian? I was like no I'm Indian but I love Pakistan also। It's fine, you listen to my music there। Yes, one of my friend recommended me that song। Okay, that's why that's how I got to know you। And also the music evolution of yours after the first album। बहुत बड़ा चेंज आया है। लाइक फर्स्ट ईपी था मेरा नालायक के नाम से, जिसमें बावरा था, सावन था। फिर फर्स्ट एल्बम आया मैं का बुखार, तो ऑब्वियसली आई वाज इन द लाइक लर्निंग प्रोसेस ना। सो हर एक एल्बम में दिख रहा है कि वी आर राइजिंग। बट म्यूजिशियन का ये होता है, आप जब तक दुनिया में हो आप सीखते ही हो, बिकॉज म्यूजिक इज नॉट अ सब्जेक्ट कि आपने रीड किया उतना ही था और खत्म हो गया। तो अभी भी हम सीख रहे हैं। लाइक अभी चलो ऑन दिस इंटरव्यू आई विल रिवील, अभी किसी को नहीं पता था। सो वी आर रिलीजिंग 4th एल्बम कॉल्ड मरम्मत। मरम्मत मीन्स रिपेयर। सो ये मैंने बहुत सोच समझ के नाम रखा, बिकॉज पिछले कुछ महीनों में आई वाज गोइंग थ्रू लाइक वेरी बैड वाला इमोशनल ब्रेकडाउन, नॉट बिकॉज ऑफ सम रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट, फ्यू थिंग्स लाइक रिलेटेड टू वर्क प्लेस ओनली। तो फिर वहाँ से नाम आया मरम्मत। लाइक नाउ आई एम इन अ फेज ऑफ रिपेयरिंग माई सेल्फ। सो उसमें 8 गाने हैं। So I'm really excited for the album also। We will start releasing that album from January 2025। Okay, got it। So we will be playing 3 songs from that album tonight for Arunachal Pradesh। Wow, got an exclusive। Yeah. Okay, just tell me the scenario of independent music in India। पहले तो इतना नहीं था, अब बहुत अच्छा है। लाइक एवरी इंडी बैंड इज गेटिंग अ गुड किक इफ दे आर लाइक डिसिप्लिन्ड विद देयर वर्क। क्योंकि इंडी बैंड स्टार्ट होते हैं विद इंडी, कि हम इंडी करेंगे, देन दे सी कि नो वन इज सिंगिंग देयर सॉन्ग, इट टेक टाइम्स। लाइक आपको गाने रिलीज करने पड़ेंगे बैक टू बैक, देन दे कम बैक टू दिस लाइक बॉलीवुड ट्रैक कि हम चलो थोड़ा कवर भी कर लेते हैं बॉलीवुड। आई लव बॉलीवुड बट लाइक इंडी से फिर वो हट जाते हैं, देन दे आर लाइक मिक्स सेट एंड ऑल। बट आई विल टेल देम कि मोटिवेटेड रहो, बिकॉज आई स्ट्रगल फॉर लाइक 6 years। 6 साल के बाद लोगों को पता चला। अभी 9th एनिवर्सरी मैंने सेलिब्रेट किया। नाउ आई एम हैप्पी दैट पीपल नो, लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू प्ले इन अरुणाचल, पीपल नो अस हियर, दे सिंगिंग आवर सॉन्ग। तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो डू यू वांट सम काइंड ऑफ चेंजेस इन इंडियन इंडिपेंडेंट म्यूजिक सिनेरियो, और इफ यू कैन बी द चेंज एंड व्हाट विल दैट बी? If you bring that अगर चेंज मैं चाहूँगा तो मैं ये चाहूँगा कि जितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ना स्पेशली, दे शुड स्टार्ट एक्चुअली वर्किंग विद इंडिपेंडेंट बैंड्स। सो उससे क्या होगा, नेटफ्लिक्स एंड ऑल दे आर अ बिग प्लेटफॉर्म, पूरी दुनिया उनको देखती है। तो उससे क्या होगा कि आपका म्यूजिक कल्चर इंट्रोड्यूस होगा कि आपकी कंट्री में क्या क्या म्यूजिक चल रहा है। लाइक इट विल गो एक लेवल पे जाएगा वो। तो बस मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा हो कि OTT वाले या कुछ भी जो भी इस चीज़ को करते हैं, मार्केट करते हैं, फिल्म म्यूजिक एंड ऑल, दे शुड स्टार्ट लाइक दे फोकस ऑन दिस थिंग कि हमारे बैंड्स कितने अच्छे इंडिया में। लाइक वी हैव कितने अच्छे अच्छे बैंड्स एक्चुअली, सीरियसली। मैं नाम तो नहीं सबके लूँगा, फिर कई गुस्सा हो जाते हैं ना, हमारा नाम भी ले देता। तो यार देयर आर लॉट ऑफ गुड बैंड्स। लाइक ये चेंज मैं चाहूँगा कि ये हो, एक OTT प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी सीरीज़ जो होती हैं, वेब सीरीज एंड ऑल, उसमें इंडिपेंडेंट म्यूजिक को चांस दिया जाए पूरा म्यूजिक करने का या ये डिज़ाइन करने का सब कुछ। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट बॉलीवुड म्यूजिक? मुझे पसंद है। टेक्निकली तो ये है, चलो हम अभी इंडी आर्टिस्ट अपने गाने गाते हैं, बट सुना तो हमने वो म्यूजिक भी है। सो अब जैसे मैंने शान सर को कल सुना, सो वैसे ही मैंने उनको सुना था KK। आई प्लेड विद देम 2 shows, मंगलुरु में और इंदौर में। तो हमने सुने तो गाने, वो उससे मैं कनेक्ट हो पाया क्योंकि दे वर एक्चुअली प्लेइंग इट विद डिसिप्लिन्ड वे।
इम्प्रोवाइज करके, म्यूजिकली इतना स्ट्रांग था। तो आई लव बॉलीवुड म्यूजिक, मतलब दे आर गुड आर्टिस्ट। आप अरिजीत सिंह को देखो, ये सब मजा आता है सुन के, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो मैं कोई एंटी नहीं हूँ बॉलीवुड म्यूजिक का, ये बट ये है कि हाँ मैं ये वाला काम कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा फोकस इंडी म्यूजिक सीन में है। हाँ, तो यू हैव अ यूनिक kind of approach for song lyrics, but abhi matlab now we can see Bollywood is doing all kind of remakes and stuff. They are not into producing like matlab unique music and stuff, matlab pata hai to that's what I want to say, like market में ऐसे होता है ना, हम खाना खाने जाते भी look for जो ऑर्डर जल्दी आए ना। हाँ, तो अब लिरिक्स लिखना, कंपोज करना, इट टेक टाइम। फिर लिरिक्स लिखने वाले को पैसा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। इससे बेटर आई गेस दे डू दिस थिंग कि रिमिक्स वाला है, उसको राइट्स का थोड़ा पैसा दिया, जो भी होता प्रोसेस उसको रिमिक्स मतलब जो अभी है उससे मतलब बना बनाया चीज को बस थोड़ा सा हमने, आपको नमक ज्यादा चाहिए था आपने नमक डाल दिया, ये तो हाँ मतलब मुझे पर्सनली वो चीज़ पसंद नहीं है। मतलब मैं कभी रिमिक्स वगैरह सुनता नहीं, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ है, जो जिस आर्टिस्ट ने गाई है, तो वो ज़्यादा बेटर है, ऑब्वियसली वो रहेगी। यू हैव टू क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट। यस यस। एंड ऑल्सो व्हाट डू यू मतलब नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में नालायक को कहाँ देखना चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि हम लोग इंटरनेशनल टूर करें। वेरी नाइस। अपने एल्बम को सुनाएं बाहर जाके। और मैं क्या चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ सिर्फ नालायक के लिए नहीं, जितने भी इंडिपेंडेंट बैंड्स हैं उनको एक अच्छा सपोर्ट मिले अपनी कंट्री से। एक मतलब ये नहीं कि आप मतलब ऑडियंस बाकी आर्टिस्ट को सुनना छोड़ दे, बट ये कि आपकी कंट्री के खुद के बैंड्स हैं तो आपको उनको प्रमोट करना पड़ेगा उस लेवल पे खुद भी। ऑडियंस सपोर्ट ऑब्वियसली आर्टिस्ट के लिए बहुत मैटर करती है। तो बाकी नालायक के लिए मेरा ये कि मैं एल्बम्स निकालता रहूँ, अच्छे म्यूजिशियंस के साथ काम करता रहूँ। जो मेरा अभी भी लाइनअप है बॉयज प्लेइंग विद मी, दे आर रियली वेरी गुड। नालायक है मेरी तरह, टचवुड, और पूरी टीम बहुत अच्छी। तो मैं ये चाहता हूँ इंटरनेशनल हम शोज़ करें, अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स बजाएं, क्योंकि कितनी इंडियन रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो उनके लिए बजाएं। कोई ना कोई तो सुनता ही होगा पक्का नालायक या कोई और इंडियन बैंड। Obviously, so why not? So when you do live performances, what do you expect the audience to gain from you? Nothing. वो चुपचाप भी खड़े रहेंगे ना, if they are not abusing artists, that's the best thing. Yeah. Okay. हर बार ऐसा नहीं होता, sometimes people are drunk and all, they do that thing, but mostly मैं चाहता हूँ if you know the song, don't feel shy, गाओ चीख के चिल्ला के। आर्टिस्ट को बहुत अच्छा, हम स्टेज पे होते हैं ना, हमें एक अंदर से पता नहीं क्या एक एनर्जी का रश आता है, फिर फील गुड, और उसकी वजह से हम घर जाते हैं फिर अच्छे अच्छे गाने और लिख पाते कि यार वो हमारा वो वाला गाना गाए थे, नाउ आई विल गिव मच बेटर देन दैट। And also, you are visiting Northeast way too much. So, are you in love with someone like from Northeast India, or like you are in love with Northeast India? My partner is from Northeast. Oh, India. that's why. So, okay. Yeah, I don't want to mention the name. Yeah, sure. क्योंकि एक बारी मैंने कर दिया था, so she was in a trouble. So yeah, not सिर्फ वो reason नहीं है. हाँ. वो तो अभी रिसेंट का बात है, चलो आई एम विद समवन। यस। सो मैं नॉर्थ ईस्ट में आना स्टार्ट हुआ 2017 से। ओके। फर्स्ट टाइम आई केम टू असम टू द कॉलेज BBC खोखराजार। ओके ओके। खोखराजार, देन आई वेंट टू CIT खोखराजार, देन तेजपुर यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, NIT सिलचर, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, IIT गुवाहाटी, और मतलब बारपेटा, फखरुद्दीन मेडिकल कॉलेज। यस। So you're visiting way too much. That's why I'm saying actually. Yeah. So yeah, North East में मैं बहुत किया, Arunachal side also. This is the 5th festival that I'm playing in Arunachal. Okay. In 2 years, like 1.5 year के gap में, this is the 5th time that I'm coming. और yeah, North East में मजा आता है. Especially I love the food. हाँ. वो किसी के साथ तो रिलेशन या कुछ वो अलग चीज़ है. खाना is the best. तो मजा आता है. कल भी मैंने आते हुए थाली खाया. नियर शिव सागर ओनली, इज अ प्लेस, मुझे नाम नहीं पता रेस्टोरेंट का, हम हमेशा वहीं रुकते हैं पिछले 5-6 साल से। हाँ. उनका वो फिश फ्राई, दाल, वो आलू भाजी, स्टिकी राइस, ओह वेरी नाइस। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं उधर लैंड हुआ, भैया जो सबसे बढ़िया जगह है ना वहाँ पे रोक दो, खाना खाना मुझे। ये वाला करी, वो वाला करी, ये मीट का, वो मीट का।
So yeah, food is the reason that I love. And plus नॉर्थ ईस्ट के लोगों का एक नेचर है, if they love you, if they greet you, उनसे अच्छा कोई नहीं. Hospitality is the best thing they do. Plus they are very respectful. और नलायक और लोकल ट्रेन पिछले कुछ सालों से एक ऐसे बैंड है जो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में प्ले करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ गुड बैंड्स, बट मेनी बैंड्स दे डोंट लाइक, अब या तो शो नहीं हुआ, दे आर नॉट ट्रैवलिंग टू दिस साइड. बट पिछले मेरे ख्याल से 2017 से मैं पता नहीं 100-200 बार ही आ चुका हूँ यहाँ पे. मतलब अब ऐसे है कि एयरपोर्ट का जो ग्राउंड स्टाफ है वो भी जानता है, सर आज कहाँ जा रहे हो, यहाँ से कितना अच्छा बाय रोड जाना है सर, अच्छा इस रूट से जाना है, दे आर सजेस्टिंग यू रोड्स. या कि हाँ अच्छा सर चलो हम आएंगे. और कितनी बार तो ग्राउंड स्टाफ गुवाहाटी एयरपोर्ट का, रिमेंबर वहाँ से छुट्टी लेके, झूठ बोल के या कुछ भी ऐसे बेचारे छुट्टी लेके हमारे शोज देखने आए. फिर अगले दिन वो ड्यूटी करे, सर हम रात को थे देखो वीडियो, ड्यूटी से जल्दी गए थे. तो अच्छा लगता है. मतलब नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा फैन बेस नालायक का नॉर्थ ईस्ट में. इफ आई ओपन माय स्पॉटिफाई, फर्स्ट सिटी ऑन द टॉप इज गुवाहाटी. Okay. Second is Mumbai, but like Guwahati is always on the top from past 4 years. So I feel so good कि wow North East में इतना अच्छा है. और ये सब आर्टिस्ट, आप किसी भी आर्टिस्ट को ले लोगे ना, if you ask any, if you आप निखिल डिसूजा का इंटरव्यू लोगे, he will say the same thing because he also enjoyed North East. If you go to Raman Negi and few of my other friends ना, they will say कि North East में हमें play करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. Because of the people and the culture. Yeah. And also, would you like to infuse northeastern musical instrument? मेरा बीच में प्लान था. I have a very good friend आपके असम से, सुजॉन. Okay. So हम लोग प्लान कर रहे थे, हम लोग कुछ करेंगे ये वो. तो Any collaboration? Let's see क्या होता है. Because सबका टाइट रहता है सीन. बात तो हम कर लेते हैं, हम कोलैब करेंगे, फिर delay. Let's see. No commitments, but yeah, definitely we'll try to do something. Okay. Thank you for joining India Today. Thank you so much. Lovely talking to you. Thank you so much. Pooja. Yes. And Mausam behind the camera. Thank you so much. Thank you. Thank you.